Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 12th history, we were discussing a very new chapter that was Vijayanagar Empire. We have read the very first introductory part of this chapter, especially the discovery of Hampi. Now we are going to start further. Let's see. I think you must remember this face. He is the Colin Mackenzie who discovered Hampi. The very first topic we will discuss in detail, that is Raj, Nayaks and Sultans. According to the tradition and epigraphic evidence, two brothers, Harihar and Bukka, founded the Vijayanagar Empire in 1336. Kindly remember these two names because in each and every year in CBSE board examination, directly or indirectly they will ask the particular name of these two persons, that is Harihar and Bukka, who founded the Vijayanagar Empire. So Harihar and Bukka founded the Vijayanagar Empire in 1336. This empire included within its fluctuating frontiers people who spoke different languages and followed different religious tradition. You can say the Vijayanagar Empire, its boundaries were fluctuating, means sometimes it is increasing, sometimes it is decreasing. And the most important part about this empire is the people. Here the people follow different religious traditions as well as they spoke different languages, means they have very diverse population who are residing inside the Vijayanagar Empire. On their northern frontier, the Vijayanagar kings competed with the contemporary rulers including the Sultans of Deccan and the Gajpati rulers of Odisha for control of the fertile river valleys and the resources generated by lucrative overseas trade. Now, on the northern side, यहाँ पे बात हो रही है कि जो विजयनगर एम्पायर था उसके जो नॉर्दर्न फ्रंटियर थे वहाँ पे क्या इनको किसके साथ इनके कंपटीशन फेस करते थे, किसके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट होते थे. द वेरी फर्स्ट वन, द सुल्तान्स ऑफ डेक्कन एंड द गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, जिनके साथ इनके हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलती थी. रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज एंड द रिसोर्सेज जनरेटेड बाय लुक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड. अब जो ओवरसीज ट्रेड के थ्रू जो लुक्रेटिव आते थे, ट्रेड होता था, वो रिसोर्सेज के प्रति इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता था. एंड द सेकेंड थिंग वाज द कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज. जो रिवर वैलीज थी उनके ऊपर कंट्रोल, क्योंकि फर्टाइल लैंड हर एक प्रॉस्पेरिटी लाने का काम करता है किसी भी एम्पायर में. नाउ एट द सेम टाइम इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू स्टेट्स लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. और आर्किटेक्चर के फील्ड में जो इन्होंने आइडियाज़ को शेयर किया उसकी वजह से थोड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये इनका आर्किटेक्चर में फ़ायदा हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग देयर आइडियाज़. द रूलर्स ऑफ विजयनगर बारोड कॉन्सेप्ट एंड बिल्डिंग टेक्निक्स विच दे देन डेवलप्ड फर्दर. और इन्होंने क्या किया, ये बारो किया, जो इनके इंटरेक्शन हो रहे थे इन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्पिटिटिव जो एम्पायर्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये वहाँ से कुछ आइडियाज़ को बारो करते हैं और उसके अंदर अपना फ्लेवर देके उसको और फर्दर डेवलप करते हैं. लेट्स सी फर्दर. Some of the areas that were incorporated within the empire had witnessed the development of powerful states such as those of Cholas in Tamil Nadu and Hoysals in Karnataka. Ruling elites in these areas were extended patronage to elaborate temples such as Brihadishvara temple at Thanjavur and Chennakaseva temple at Belur. The rulers of Vijayanagar, who called themselves Raj, built on these traditions and carried them, as we will see, literally to new heights. और नई ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं. अब देखिए इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, वो ये है कि इनके एम्पायर को विटनेस किया है कुछ पावरफुल किंगडम्स में, जैसे चोलाज जो थे तमिलनाडु में, उन्होंने इनको एम्पायर को रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ ये कितना डेवलपमेंट इन्होंने अपने एम्पायर में किया है विजयनगर एम्पायर में. ऑल्सो होसियाल्स जो कर्नाटक के थे उन्होंने भी इस चीज़ को विटनेस किया है.
जो भी रूलिंग एलिट्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए हैं, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल था जो थंजावुर में था, और चेन्नकेशवा टेम्पल था वो बेलूर में था। नाउ किंग्स एंड ट्रेडर्स। एज वॉरफेयर ड्यूरिंग दीज टाइम्स डिपेंडेड अपॉन द इफेक्टिव कैवलरी। व्हाट इज कैवलरी? घुड़सवार जो दस्ता होता है जो घोड़े के साथ चलते हैं उनको कैवलरी कहते हैं। द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइवल किंगडम्स। और ऑब्वियसली बात है इनका आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दे वांट टू बी मोर एडवांटेज स्टेज, वो हर कोई चाहेगा कि वो एक एडवांटेजियस स्टेज पे रहे। दैट्स वाई दे इम्पोर्ट हॉर्सेज फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। This trade was initially controlled by Arab traders. Local communities of merchants known as खुदराई, चेतीज और हॉर्स मर्चेंट also participated in this exchange. और कहीं ना कहीं इसके ऊपर डोमिनेशन किसका था? इसके ऊपर डोमिनेशन था अरब ट्रेडर्स का रिगार्डिंग ट्रेड ऑफ हॉर्सेज। बट जो यहाँ पे लोकल मर्चेंट्स थे, जो कम्युनिटीज़ थी मर्चेंट्स की, जिनको खुदराई चेतीज कहा जाता था, वो भी इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते थे। फ्रॉम 1498 अदर एक्टर्स अपीयर्ड ऑन द सीन, और 1498 से अदर लोग भी इनके अलावा भी बहुत से लोग आने लगे। These were the Portuguese who arrived on the west coast of subcontinent and attempted to establish trading and military stations. और इसके बाद 1498 में अदर जो आ रहे हैं सबसे पहले थे पुर्तगीज, एज यू नो वास्को डी गामा कैलिकट आए थे। These were the very first one of the Portuguese, वो आते हैं वेस्ट कोस्ट पे, कॉन्टिनेंट पे, और इस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्या? ट्रेडिंग एज वेल एज मिलिट्री स्टेशंस। देयर सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्पेशली द यूज ऑफ मस्केट्स, इनेबल्ड देम टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टैंगल्ड पॉलिटिक्स ऑफ दिस पीरियड। और इस समय एक चीज़ सबसे बड़ी इनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो था यूज ऑफ मस्केट्स। मस्केट की यूज की वजह से क्या हुआ? दे बिकम मोर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वो डोमिनेट करने लगे पूरे इस राइवलरी वाले सिचुएशन में, इस टैंगल्ड पॉलिटिक्स वाले पीरियड में। In fact, Vijayanagar was also noted for its markets dealing in spices, textiles and precious stones. और विजयनगर को इसलिए भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी जो मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ थी, इसकी जो ट्रेडिंग कैपेबिलिटी थी रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग स्पाइसेज, टेक्सटाइल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स, इसमें ये डील करते थे। ट्रेड वॉज ऑफन रिगार्डेड एज ए स्टेटस सिंबल ऑफ सच सिटीज which boasted of a wealthy population that demanded high value exotic goods, especially precious stones and jewelry. और इससे क्या होता है? ट्रेड को हमेशा एक स्टेटस सिंबल की तरह ट्रीट किया जाता था, और ऐसे शहरों के लिए जो कि एक वेल्दी पॉपुलेशन को डिनोट करता था, बिकॉज वहाँ पे डिमांड किस चीज़ की थी? हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स की, जो हाई वैल्यू हुआ करती थी, जो सुनहरी चीज़ें होती थी, सुंदर दिखने वाली चीज़ें थी, ज्वेलरी वाली चीज़ें थी, प्रीसियस स्टोन्स थी, यहाँ पे ज़्यादा इनको तरजीह मिलती थी। The revenue derived from trade in turn contributed significantly to the prosperity of the state. और as you already know, जो भी कंट्री ट्रेड में ज़्यादा डोमिनेट करती है, जो भी किंगडम ट्रेड में ज़्यादा सुपीरियर होता है, अल्टीमेटली ये दिखता है उसके स्टेट की प्रॉस्पेरिटी में। इन द सेम वे विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी इसीलिए इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस थी, जस्ट बिकॉज इट्स सिटीज वर ट्रेडिंग कैपिटल्स, वो हमेशा ट्रेड में डील करते थे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द अपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। थैंक यू सो मच।